Yes, good morning class. In our previous class, we have discussed the question of question answer of this chapter, sorting of materials. 2 questions were left. So, in question number 6, just a minute. In question number 6, in question number 6, you have to list all the items known to you that float on water. Check and see if they will float on oil or kerosene. ठीक है. In question number C, हमें वो सारे items को लिखना है that will float on water. So, float on water. Now we list the things which will float on oil or kerosene, you can say. ठीक है. Oil or kerosene. So in this first column we have to list the items which will float on water, and in the second column we have to list the items which will float on air. So the first item or material you can say is paper. Paper will float on water. Second is wood. Wood will also float on water. लकड़ी का टुकड़ा, piece of wood, or you can say wood. Thin plastic, जो बहुत पतली सी एक प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक शीट बहुत पतली वाली. If you will put that in water, you will see that it will float on the surface. पानी की surface पे यहाँ पे you can see that it is floating on the surface of water. Next is wax. जो हमारी वैक्स कैंडल होती है, ठीक है. अगर आप उसको मेल्ट, एक ग्लास में पानी लेके उसके ऊपर उसको मेल्ट करें, यू विल सी दैट जो वैक्स है इट विल डोंट सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर, रादर इट विल सेटल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ सरफेस. ठीक है. एंड ऑल्सो आइस क्यूब्स. आइस क्यूब्स जो हम अपने यूजुअली रेफ्रिजरेटर्स में फ्रीज करते हैं, आइस को बनाते हैं, अगर आप उनको लेके एक पानी की ग्लास में या बीकर में डालें, then you will see that it will float on the surface of the water. Now the materials which will float on oil. So thermocol you must know thermocol. It's a white sheet जिसमें छोटे छोटे bubbles होते हैं. The thermocol will also float on the surface of oil. ठीक है. Kerosene is a oil, and when we put thermocol in that oil, it will float on the surface of the kerosene. Next is wood. Like we have seen in the experiment which we did it with water, the wood started flowing on the surface of water once we put it in the beaker filled with water. Similarly, when you will put that wood in oil or kerosene, you will see that it also floats. Next is paper. Paper will also float on the surface of oil or kerosene. Wax will also float on the surface of oil or kerosene. So these are the things which will float on the surface of water and surface of the kerosene or oil, you can say. What are these? These are paper. Paper will float on water. Wood, thin plastics, wax and ice cubes. It will all float on the surface of the water. And the things which will float on the surface of kerosene are thermocol, wood, paper and wax. Okay. Now the next question number 7. Now we are going to take the question number 7. The PDFs, the written solution of these questions, children, will be provided to you by evening. Today evening or the next day. Okay. So the last question of this chapter is question number 7. Find the odd one out from the following. Few things, इनमें आपको 4-5 चीजें दी गई हैं, उनमें से आपको odd one out करना. odd one out मतलब जो बाकी सबसे सिमिलर ना हो, that is called as odd one, और हमें उसी को आउट करना. We have to choose
then you have bed, table, next is baby and cupboard. Baby and cupboard. As you can see कि chair, bed, table and cupboard, all these are made up of wood, but baby is a living thing. ठीक है, baby is a living thing and it is not made up of wood, so baby is clearly the odd one out. In question number 7 part A, chair, bed, table, baby and cupboard were given to us and we have to find the odd one out. इनमें से जो मैच नहीं कर रहा, जो अलग है, हमें उसे बाहर करना, उसे आउट करना है. ठीक है, so chair is also made from wood, bed is also made from wood, table is also made from wood and cupboard is also made from wood. All these are non-livings, but baby is a living thing. It is not made up of wood. Baby is made up of flesh and blood, so it is the odd one out. The second part is rose, jasmine, goat, marigold and lotus. Goat, marigold and lotus. Okay, rose, jasmine, goat, marigold and lotus. As you can see that all these are flowers. Rose, jasmine, marigold and lotus, all these are flowers. Goat is not a flower, so it is the odd one out in this part of the question. ठीक है? The third part, aluminium, iron, copper, silver and sand. In this part of the question, aluminium, iron, copper, silver and sand is given to us and we have to find the odd one out. In this question, the sand is the odd one out because rest others, that is aluminium, iron, copper and silver, these are all what? These are metals and sand is a non-metal. It does not come under the category of metal, so this is the odd one out. All these materials, aluminium, iron, copper and silver, they are metals. They have certain properties similar with each other, like the surfaces shine, they have luster. ठीक है, इन सब की properties same है और sand जो है उसकी property इन सब से अलग है. That is why we have taken sand as odd one out. The fourth part is sugar, salt, sand, copper sulfate. Okay, in this part sugar, salt, sand and copper sulfate. ठीक है, इसमें odd one out है sand. Why? Because sugar, salt and copper sulfate are dissolvable. They are soluble in water, but sand is not soluble in water, insoluble in water. Because we have learned a new thing here. हमें यहाँ पे एक नई चीज दिख रही है, copper sulfate. बेटा, it is the solution. ठीक है, CuSO4. When in your higher classes you will learn about the elements, their periodic properties, then you will come across this copper sulfate. It is a solution. ठीक है, ये पानी में mix होता है. Sand and sugar, salt and sugar, we already know that it is soluble in water. But हमने जब activity की थी अपनी activity 4 और 5, तब हमने देखा था, जब हमने sand को mix किया था, मैंने आपको PPTs में भी दिखाया है ये, कि जब हमने sand को पानी में mix किया तो वो उसमें मिक्स नहीं हुआ. ठीक है, थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो जो बीकर था उसके सरफेस पे सैंड जो है वो सेटल हो गया. और पानी क्या है, क्लियर वाटर से हमें मैला, थोड़ा सा मडी वाटर दिखने लगा जब हमने सैंड को मिक्स किया था. ठीक है, तो सैंड इज द ऑड वन आउट इन दिस पार्ट बिकॉज इट इज नॉट soluble in water, it is insoluble in water, and rest other sugar, salt and copper sulfate, these solutions are soluble in water. ठीक है, so with this we have finished all the exercise of our question, all the questions of our exercise chapter 4, sorting of materials. In the next lecture we will be starting a new chapter, sorting of material, separation of substances. So let's just get a brief idea of what is there in that chapter. Students, separation word मतलब होता है अलग करना. ठीक है, हम अपनी जो मॉर्निंग होती है वो चाय से शुरू करते हैं बहुत सारे लोग,
तो हम चाय को जब प्रिपेयर करते हैं, व्हेन वी प्रिपेयर टी, जो टी लीव्स होती है वी यूज टू फिल्टर इट, ठीक है, छन्नी या सीप की हेल्प से वी फिल्टर दी टी लीव्स फ्रॉम, ठीक है, वी फिल्टर द टी लीव्स। नाउ वी आर आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ आइडिया ऑफ चैप्टर नंबर 5, ठीक है। द कंप्लीट चैप्टर वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास। आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू अबाउट द चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 इज सेपरेशन ऑफ, चैप्टर नंबर 5 सॉरी, चैप्टर नंबर 5 इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। सो वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ चाय, ठीक है। जब हम सुबह चाय बनाते हैं, उसकी लीव्स, जो टी लीव्स, चाय पत्ती को आप डालते हो, कुछ लोग जिंजर को भी क्रश करके डालते हैं, ठीक है। आप उन सबको हम लोग अपनी टी के साथ पीते नहीं है। वी क्या करते हैं, जब हमारी चाय प्रिपेयर हो जाती है, जब बॉईल हो जाती है, वी यूज अ सीड, ठीक है, इस तरह से कुछ दिखती है छन्नी, ठीक है। आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग ऑन बोर्ड बट आई एम ऑन पेपर आई एम गुड, ठीक है। आई एम नॉट वेरी गुड ऑन ड्राइंग ऑन बोर्ड, सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर फ्रॉम दिस, दिस इज द सीड, ठीक है। हम अपनी जो चाय होती है इसमें पोर करते हैं, जो रेजिड्यू होता है, रेजिड्यू इज जो बचा हुआ चीज़ रहता है, जो हमें नहीं चाहिए होता है, वो यहीं पे रह जाता है, और जो हमें चाहिए होता है चाय, ठीक है, जो फिल्टर की हुई चाय रहती है वो हमें यहाँ पे कप में मिल जाती है, और जो हमें नहीं चाहिए होता है वो कहाँ पे रह जाता है, वो छन्नी में यहाँ पे रह जाता है, ठीक है। आप जब चाय पीते हो तो आप टी लीव्स को नहीं पीते, आप पार्ट्स ऑफ अदरक को नहीं पीते, ठीक है। यू जस्ट ड्रिंक द प्योर चाय। सो जो ये चाय को प्रिपेयर करने में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर द चाय इज रेडी, आफ्टर आवर टी इज रेडी, हम लोग जो भी ये टी होती है उसको छानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फिल्टर करते हैं, फिल्टर द टी विथ सीव, सीव इज है छन्नी, ठीक है। हम जो अपनी टी होती है उसको फिल्टर करते हैं छन्नी की हेल्प से, और हमें प्योरिटी मिल जाती है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, जैसे अगर हम बीज वाले कोई भी फ्रूट्स खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ईट ऑरेंज, ऑरेंज आप लेते हो, इन दीज डेज यू मस्ट बी ईटिंग वाटरमेलन एंड मैंगो, वाटरमेलन हो गया, मैंगो हो गया, ऑल दीज फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम, ठीक है। तो आप व्हेन वी हैव द एप्पल, व्हेन वी हैव द वाटरमेलन और व्हेन वी हैव द मैंगो, डू वी ईट द सीड्स आल्सो? नो, वी टेक आउट द सीड, हम सिर्फ पल्प वाला पार्ट खाते हैं, वी डोंट ईट द सीड्स ऑफ दिस फ्रूट, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रूट होता है हमारा, जो फ्रूट हम खा रहे होते हैं उसमें से उसके सीड्स को अलग कर देते हैं, एंड वी हैव द pulp part of that fruit. तो this is also a kind of filtration which we do while we eat the fruit, ठीक है। ऐसी बहुत सारी फिल्ट्रेशन होती है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी करते हैं। फ्रूट हो गया, ठीक है, और एक चाय वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आप इन दोनों केसेस में ये देख पा रहे हो कि जो पार्टिकल्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हमें अलग करना है, वो बहुत ईजिली हमें दिखाई दे जा रहे हैं, ठीक है। जो आपको टी लीव्स है वो भी आपको देखने वाले अमाउंट में, सॉरी, आप उसको देख पाए, इतनी बड़ी होती है। जो बीज होते हैं कुछ फ्रूट्स के, उनको आप इजीली निकाल सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फिल्टर करना मुश्किल होता है। उनके पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर वेरी माइन्यूट, माइन्यूट मीन्स दे आर वेरी स्मॉल, उनको हम लोग ईजिली बाय हैंड अलग नहीं कर सकते। उन सारी चीज़ों को फिल्ट्रेशन के लिए वी यूज डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। अगर आप में से किसी ने फार्मिंग देखी होगी, तो हम जब फसलों की हार्वेस्टिंग करते हैं, व्हेन वी हार्वेस्ट द क्रॉप्स, तो हम उसमें से जो ग्रेन होता है उसको अलग करते हैं उसके स्टॉक से, उसका जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू टेक राइस, ठीक है, राइस यू ऑल नो जॉ इस तरह से होता है, ठीक है। तो व्हेन वी कंज्यूम, व्हाट वी कंज्यूम इन राइस, वी कंज्यूम द इनर वाइट पार्ट। आप जो है इनर वाइट पार्ट को खाते हो, जो बाहर वाला रहता है इसको हस्क बोल सकते हैं, स्टॉक्स बोल सकते हैं, दैट इज नॉट एडिबल, हम उसको नहीं खाते। तो हम लोग मशीन के थ्रू थ्रेशर यूज करके इस पार्ट को अलग करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन। और बहुत कॉमन एग्जाम्पल हम अपने घर में देखते हैं, जब हमारी मम्मी चावल बनाती है, ठीक है, व्हेन वी कुक राइस, तो
हैं, पहले राइस को लेते हैं एक बर्तन में, फिर उसमें से ये चेक करते हैं कि कहीं उसमें कोई कंकड़ तो नहीं है, दैट इट डज नॉट हैव एनी स्टोन पार्टिकल्स, कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन विच वी डू, ठीक है। ऐसी बहुत सारी फिल्ट्रेशन है विच वी ऑल डू इन आवर डे टू डे लाइफ। सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल बी टेकिंग ऑल दी मेथड्स ऑफ सेपरेशन। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करने को हम लोग सेपरेशन कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बहुत सारे मेथड्स देखेंगे दैट आर यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो in our next chapter we will next session we will continue with this. Till then you have to do all the exercise question in your fair copy, the PDF of which I will be providing you. Okay, not only you have to write the question but also you have to memorize it, you have to learn the question. Okay children, I am providing you the PDF only for the reason that आपके पास एक नोट्स बने हो जिसको आप पढ़ के एग्जाम में प्रिपेयर कर सके, सिर्फ लिखने के लिए नहीं मिल रहा है नोट्स। ओके